We'll start array today, and today we'll discuss the abstract data type of arrays, and then we'll discuss the C++ implementation as well. Um, in the last lecture, we discussed about the ADT. Can somebody repeat what is an ADT? Maybe Kashif, can you repeat? Shazil says that ADT stands for abstract data type. That's right. Daniel says theoretical data structure design. Exactly. ठीक है जी. So Shazil again. सर जी काशिफ. सर एडीटी इज एन आइडिया और जो हमारे पास सेकंड स्टेप कौन सा था आई गेस डेटा स्ट्रक्चर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट जी हम डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया था हमने दो चीज़ों में. The first part was कि data structure has some storage, and then we discussed कि for every storage we need to decide कि which operations are required. In fact, all the data structures have some common operations, like reading and searching and writing. But there are some specific operations that are designed for a specific data structure. We try to maximize the efficiency of that operation, keeping in mind that the data structure design is specifically designed for this type of application. Some data structures, they are designed in a way, the memory is designed in a way that maybe the search operation is best. Or in fact, instead of search, I can say it is easier to locate an element in the entire universe of data elements. Okay, so if we have millions of elements, we still reach the required element in the best possible way, in the least number of steps. When I talk about the steps, it simply means that when the steps are more, the time is of course more than the when the steps are less. So um, to just summarize the overall discussion, ADT is a design in which we focus on two things. The first thing is the storage, how we will store or keep multiple data elements in the memory, and then we discuss about some operations of that specific storage. So if we combine these two things, we make an abstract data type of a data structures, of a data structure. And when we actually implement that design, it becomes a data structure. Okay. Before the implementation, the design is called the ADT, and after the implementation of that design, the implementation is called the data structure. So when I say in C++, list a queue or DQ object is available, I am saying that a data structure is already available. An implementation of an ADT is already available in C++. So this is the some recap of the previous lecture. So today we'll discuss about the arrays as abstract data type. We'll discuss what is the design of an array, why some things are like the way they are. Otherwise, we could have something different than what we have today. So the design, learning the design or understanding the common pros and cons of the design is important here. So we'll discuss that in detail. In fact, I'll take some examples as well. I'll show you how we actually came up with this design that we currently use in C++ or other high-level languages for array. So let's move forward and start this concept. So what is an array? What you know from your previous lectures, from your previous courses. Simply हमने array को discuss किया था कि an array is a collection of elements, right? And the size is fixed. Okay, we have a fixed number of elements, and all the elements are of the same type. Okay, so if we use the exact terms, then we use the fixed size and the homogeneous elements. Okay, then there is this word ordered. This is a new word. We didn't discuss it in OOP or PF course. So let's discuss it in detail. What do you mean by an array is contiguous? सर the data वो arrange हुआ है ना in stepwise order it's organized I guess
कंटिन्यूस फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी कि एक मेमोरी ब्लॉक के आगे नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है, इफ आई एम राइट सर। ठीक है काशिफ, somewhat to some extent आप लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा मजीद इसको दूसरे एंगल से देखूंगा, ठीक है। सैफुल्ला सेज दैट डाटा इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मैनर, ठीक हो गया, इट इज कंटिन्यूस, ठीक है। ऑर्डर्ड का वर्ड में आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट द टर्म ऑर्डर्ड, व्हाट डज दिस ऑर्डर्ड रेफर टू, ठीक है। शेजिल सेज इंडेक्स, ओके, समवट इंडेक्स, okay, so when you talk about order of an array, it means that the elements in the array are numbered. First element, second element, third element, fourth element, so on, right? अगर आप इसकी थोड़ी सी और एनालिजी देखें तो what we can say is कि हमारे पास ऑर्डर का एक तरीका जो हमें पता था वो था सॉर्टिंग का, रिमेंबर? इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई बंदा सॉर्टिंग का जिक्र करेगा। जब हम कहते हैं कि एरे इज ऑर्डर्ड तो शायद ज़हन में पहली बात जो आती है वो ये आती है कि एरे इज सॉर्टेड, ठीक है। तो लेट्स सी कि कितनी एरे सॉर्टेड होती है। आप लोगों ने सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन देखी हुई है, ठीक है, एरे की। तो क्या एरे में जब भी आप एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो सॉर्टेड होता है? ठीक है, नहीं होता ना। तो जी काशिफ, आप जो भी कह रहे हैं कि कंटिगुअस इज इक्वल टू सॉर्टेड, नहीं, सॉर्टेड का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। और जो कोसैन कह रहे हैं कंटिगुअस एरे इज जस्ट एन एरे स्टोर्ड इन एन अनब्रोकन ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है, ये बात है तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड का वर्ड इन दोनों चीज़ों के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। तो ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि हम एलिमेंट्स को नंबर कर सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, next is the second element and further next is the third element and so on. This is called the ordered. अब मैं इसको sorting से relate करता हूँ कि what is sorting in terms of order, ठीक है। तो जब हम sorting की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि sorting भी तो multiple ways में हो सकती थी ना। sorting का एक ही तरीका तो नहीं कि हम कहें जी कि हमेशा magnitude पे sort करना है। तो if we have numbers, ठीक है, integer values हैं या float values हैं, तो when we have numbers what we can do is we can check the or compare the magnitude of the values and we can say that the index 0 or the first element of the array is the element which has the smallest or the lowest magnitude. ये हो गई ascending sorting, ठीक है, sorting in the ascending order कि सबसे पहला एलिमेंट जो है that is the smallest element in as compared to the other elements, ठीक है। और उसके बाद जो next element है वो उससे बड़ा होगा and the third element is further bigger than the second element and so on. हम कहेंगे जो last element है that is the biggest element in this data set, ठीक हो गया। तो ये सॉर्टिंग का एक तरीका था। इसका रिवर्स भी हो सकता था कि पहला एलिमेंट लार्जेस्ट है और उसके बाद एलिमेंट्स छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा जी कि ये तो था फॉर एग्जांपल नंबर्स को सॉर्ट करने का तरीका। फिर हम कहते हैं कि अच्छा अगर नंबर्स की जगह हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाएं तो हमने कहा ठीक है, कैरेक्टर्स को हम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लेंगे, इसकी भी सॉर्टिंग हमें पता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों चीजों के अलावा एक सॉर्टिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ऐसा हो सकता था कि जैसे गाड़ियां आती हैं, ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो ऑफिस है, सॉरी, एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो ऑफिस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं गाड़ियाँ। या फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के लिए आते हैं तो उनकी भी कोई रजिस्ट्रेशन है, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है तो ये जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है, हम इस रजिस्ट्रेशन पार्ट की बात करें कि हम किस तरीके से इस रजिस्ट्रेशन को एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम एरे में स्टोर करें तो फॉर एग्जांपल जो सॉर्टिंग है वो क्या हो सकती है पॉसिबली, मतलब आपके ज़हन में कोई आइडिया तो होगा ना। तो सॉर्टिंग पॉसिबली क्या हो सकती है?
अच्छा जी, तो हम ये कह सकते हैं, मैं वैसे आप हनान आप कह रहे हैं कि कैन बी असेंडिंग, ठीक है, इसके अलावा कोई और बच्चा कुछ कहता हो उस बारे में कि हमने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एनरोल करना था, तो हम ये कह रहे हैं कि जी अगर हम सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग कुड बी असेंडिंग, लेकिन असेंडिंग किस बात पे हो सकती है? ये गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन करना है। किसी के दिन में कुछ आता हो, ठीक है, अल्फाबेटिकली, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे मेजर वाइज, मेजर, अच्छा ठीक है, स्टूडेंट की बात हो रही थी, रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता किस बात पे है? ठीक है, तो दिस इज द आंसर जो शेजल ने भी दिया, कि हम ये कह सकते हैं कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, क्योंकि हम उनके आने की जो उनकी टाइमिंग है, जो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, हम उसकी बेस पे उन्हें एक नंबर असाइन करते हैं। जो गाड़ी पहले नंबर पे है उसे 001 मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो दूसरे पे आएगी उसे 002 मिल जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स के केस में, जो स्टूडेंट ने पहले में भी एप्लीकेशन दी थी उसका ARN नंबर पहला था, तो उस ARN नंबर की बेस पे उस बच्चे को रोल नंबर भी पहला असाइन हो जाएगा और दूसरे नंबर पे आने वाले बच्चे को दूसरा असाइन हो जाएगा। दिस कुड बी वन स्ट्रेटजी। अनदर स्ट्रेटजी कुड बी कि जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए उसको रोल नंबर 1 मिल जाए, जिसने सेकंड हाईएस्ट लिए उसको रोल नंबर 2 मिल जाए, एंड सो ऑन। बोथ आर पॉसिबल, लेकिन एक भी ये हो सकता है कि जिस बच्चे ने पहले एप्लीकेशन जमा कराई थी, अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उसका रोल नंबर हमेशा पहले ही आएगा, और जो बच्चा जिसने बाद में एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो अगर सिलेक्ट हो जाएगा, एनरोल हो जाएगा, तो उसे सेकंड रोल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस कुड बी अनदर वे। तो ये जो तरीका है, मतलब फॉर एग्जांपल एक और तरीके से देख लेते हैं, जैसे आप इनफैक्ट एक बहुत कॉमन सिनेरियो है हमारा कि यूजुअली PTCL का, अगर आपके घर में इंटरनेट या ब्रॉडबैंड लगा हुआ है या टीवी लगा हुआ है, तो यूजुअली उनकी सर्विस डिस्टर्ब होती रहती है, ठीक है, या घर में केबल टीवी अगर लगा हुआ है तो केबल टीवी जो है उसकी भी सर्विस डिस्टर्ब होती रहती है, ठीक है, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स वो वायर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, और उनके अंदर डेफिनेटली बारिश होगी तब भी पानी मॉइस्चर जा सकता है, या में भी हवा चलेगी तब भी अगर कोई कनेक्शन जो आपके घर तक आ रहा है उसमें कोई डिसरप्शन आ सकती है, वो किसी वजह से लूज हो सकता है, जिसको रिपेयर करने की या ठीक करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। उस केस में जब भी कोई एरर या फॉल्ट आता है और आप कंप्लेन करते हैं, तो आपको जो कंप्लेंट नंबर इशू होता है वो कभी भी आपकी एड्रेस की बेस पे इशू नहीं होता, ठीक है, कभी आपकी कंप्लेंट की टाइप की बेस पे इशू नहीं होता, वो सिर्फ इस बात पे इशू होता है कि आपने जब कॉल की थी तो आप कितने नंबर पे आए थे, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगर हम इन चीजों को अपने पास स्टोर कर रहे हो, तो जो हमारे पास ऑर्डर है दैट इज द टाइमिंग और द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। तो हम इस तरीके से मल्टीपल वेज में एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, और एरे के एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जब हम उसकी स्टोरेज को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे हमारे एलिमेंट्स का हमेशा कोई ना कोई ऑर्डर होता है। हम चाहें तो उस ऑर्डर को मैग्नीट्यूड की बेस पे चेंज कर लें, किसी एक एट्रीब्यूट के मैग्नीट्यूड की बेस पे चेंज कर लें। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को हमने रोल नंबर तो चलिए असाइन कर दिए, उससे एक स्टेप आगे आए, तो अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल अपने पास एक अटेंडेंस शीट प्रिंट करनी है, तो अटेंडेंस शीट हमेशा रोल नंबर की वैल्यू की बेस पे, यानी कि मैग्नीट्यूड की बेस पे सॉर्टेड होती है। अच्छा, दूसरे केस में अगर मैंने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है, तो ग्रेडिंग में हमेशा स्टूडेंट्स की जो ग्रेड शीट बनती है वो नंबर्स या जो स्कोर होता है उसकी बेस पे सॉर्टेड होती है, ताकि ग्रेडिंग करना आसान हो जाए। सही हो गया। तो ये एक एरे की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसमें एलिमेंट्स को रखते हैं तो वी वांट के एलिमेंट्स को हम नंबर कर सकें, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, एंड सो ऑन। लेकिन उसके मल्टीपल वेज पॉसिबल है, हम जिस तरह चाहें उस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे। और जब हम इसको नंबर कर सकते हैं तो फिर हम एक्चुअली एरे के अंदर उसका इंडेक्स, जो हमने C++ में इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, वो फिर इंडेक्स नंबर वहां से बनता है। कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिजाइन में हमने कहा या एलिमेंट्स को नंबर्ड होना चाहिए, पहला एलिमेंट कौन सा हमें पता चल जाना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो हमें पता चल जाना चाहिए। तो अगर हमें पता चल जाता है तो कैसे पता चलता है? C++ में इम्प्लीमेंटेशन ये है कि एलिमेंट की पोजीशन चेंज करें, जिसको इंडेक्स नंबर 0 पे रखी। C++ ने ये फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कि ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हम एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे इन दी मेमोरी। जो इंडेक्स 0 पे होगी वो हमेशा हमारे ऑर्डर का पहला एलिमेंट होगा।
जो इंडेक्स 1 पे होगी वो हमेशा हमारे ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। इसी वजह से जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं किसी एरे के अंदर C++ में, तो हम एलिमेंट्स को शिफ्ट करते हैं। छोटे एलिमेंट्स को इंडेक्स 0 पे लेकर आते हैं, इंडेक्स 0 से ऑनवर्ड्स लेकर चलते हैं, और बड़े एलिमेंट्स को हम लास्ट इंडेक्स से करीब लेकर जाते हैं। रोल नंबर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैग्नीट्यूड का मतलब ये कि उनको आप किसी तरह से कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये छोटा रोल नंबर है और दूसरा रोल नंबर बड़ा रोल नंबर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि अगर 19 बैच के स्टूडेंट्स हैं तो रोल नंबर का एक पार्ट है 19, इस्लामाबाद के कैंपस के स्टूडेंट्स हैं तो 19 आए, तो ये तो कहीं भी मैग्नीट्यूड में पार्टिसिपेट नहीं करे, लेकिन उसके बाद जो 0001 है और 0002 है 3 है, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको रोल नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा था, ठीक है कोसाइन, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन देखें मैंने कितनी डिफरेंट वे में दी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और डिस्कस करता हूँ। मैं इनफैक्ट एक एग्जांपल मैंने डिस्कस की थी सेक्शन बी के साथ, ठीक है। आप लोग उनकी रिकॉर्डिंग को भी अगर चाहें तो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। अगर आप लेक्चर रिवाइज करें, देखें आपने इस लेक्चर में तो आप खुद भी प्रेजेंट हैं और आई होप कि आप लोग अटेंटिव भी हैं। तो अगर आप अटेंटिव हैं तो ये लेक्चर की तो एग्जांपल्स आपने सारी वैसे भी सुन लिया। लेकिन मैंने सेक्शन बी के को भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी थी, तो आप मे बी उस एग्जांपल को भी स्टडी कीजिए। उस रिकॉर्डिंग को सुन ले, शुरू के 5-10 मिनट में वो एग्जांपल डिस्कस हो गई थी कि जिसमें हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास जो कंप्यूटर की रैम है, अच्छा जी, रिकॉर्डिंग के बारे में ड्राइव लिंक अगर नहीं मिला सैफुल्ला, अगर आप अभी फ्लेक्स पे आ गए तो मैं एक और ईमेल जनरेट कर दूंगा दोबारा। वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी रजिस्टर्ड हैं सेक्शन बी और सेक्शन एफ में, मैं उन सारे लोगों को दोबारा से उनकी जो लिस्ट है उसको अपडेट करने के बाद ईमेल कर दूंगा कि वो जो पुराना लिंक था वही लिंक है, ऑफ कोर्स लिंक मैंने चेंज नहीं किया, तो आप जो अपडेटेड लिस्ट है उनको भी चली जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, वो एग्जाम्पल उनके साथ मैंने ये शेयर की थी कि हमारे पास जो हमारे पास कंप्यूटर रैम होती है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उस रैम के अंदर हमारे पास सिंपली उसकी मेमोरी, उस प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाती है, एक मेमोरी का ब्लॉक मिल जाता है। जो मेमोरी का ब्लॉक उसको मिल जाता है प्रोग्राम को, अब उस प्रोग्राम ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। अब वेरिएबल्स को जब मेमोरी एलोकेट हो रही है तो हमने डिस्कस किया हुआ है ऊपर पीएफ के कोर्स में, इनफैक्ट शायद पीएफ के कोर्स में पहले डिस्कस किया था बहुत। तो हमने डिस्कस किया था कि जो स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स और दूसरे डायनेमिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक पे एलोकेट होते हैं, लेकिन जो उन्हें पोजीशन मिलती है, उन्हें जो एड्रेसेस मिलते हैं वो रैम में प्रोग्राम की स्पेस जो कि उसकी डाटा स्पेस होती है, उस डाटा स्पेस के लोएस्ट इंडेक्स से ऑनवर्ड्स चल रहे होते हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल जो स्टैटिकली डिक्लेयर्ड होगा इंडेक्स 0 पे होगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स 1 पे होगा, नेक्स्ट इंडेक्स 2 पे होगा एंड सो ऑन। और उसी के अराउंड जब हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी हैव डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, तो वो मेमोरी हीप मैनेज कर रही होती है, लेकिन वो जो स्पेस मिल रही होती है रैम में उस हीप को, वो प्रोग्राम की जो ब्लॉक है, डाटा ब्लॉक, उसके हाईएस्ट इंडेक्स से लोएस्ट की साइड पे ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी और ये एरे की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी कि जिसमें हमारे पास एक कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस रैम में मिल गई थी जो कि एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं उसको एरे से एनालॉजी दे रहा हूँ और मैं उसको सिमुलेट करने का पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम बता रहा था उन्हें सेक्शन बी को, कि अगर उसको सिमुलेट किया जाए तो आप डेफिनेटली रैम के लिए एक एरे ही बनाएंगे, और जो एरे आप रैम के लिए बनाएंगे उस एरे को आप एक पॉइंट पे लेफ्ट टू राइट ग्रो कर रहे होंगे, दूसरे पॉइंट पे राइट टू लेफ्ट ग्रो कर रहे होंगे। तो ये दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट्स वो हैं जिनको स्टैक मैनेज कर रहे हैं और एक वो एलिमेंट्स हैं जिनको हीप मैनेज कर रही है। लेकिन एरे को हमने बिल्कुल उस तरह से यूज किया जैसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमने एरे को हमेशा इंडेक्स 0 से ग्रो कराया, लेकिन इतना ये चीज मस्ट नहीं है। आप इन एरे को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि उसके एलिमेंट्स को आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो रैम जो ऑर्डर हुई होती है, रैम को अगर एज एन एरे देखा जाए तो उसमें प्रोग्राम की स्पेस में उस डाटा ब्लॉक के, वो जो एरे है डाटा वाली, उसके लेफ्ट टू राइट जो फिल हो रहा है, यानी कि सबसे जो छोटा इंडेक्स है वहां से बड़े इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो है वो स्टैक मैनेज कर रहा है। जब भी स्टैक पे नया लोकल वेरिएबल या स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल बनेगा, वो वेरिएबल हमारा स्टैक पे वो रैम पे लेफ्ट टू राइट मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो हमारे पास वेरिएबल बनेगा हीप के ऊपर, वो राइट टू लेफ्ट की तरफ बनेगा।
बनेगा, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट एड्रेस से लोएस्ट के थ्रू बनेगा। अब उसका फायदा ये था कि कहीं पे स्टैक किसी प्रोग्राम में ज्यादा स्पेस लेता है तो वो मेमोरी को कंज्यूम ज्यादा करेगा, और कहीं पे उसे लिमिट नहीं आएगी कि आपकी हीप की वजह से आपकी कोई लिमिट लग गई। ऐसा नहीं था कि हमने डाटा जो ब्लॉक था उसको हाफ हाफ में डिवाइड किया हुआ था और हमने कहा था जी स्टैक बस इतनी सी 100 बाइट्स दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टोटल 100 बाइट्स का डाटा ब्लॉक था तो हमने ऐसा फिक्स नहीं किया था कि 50 स्टैक की और 50 हीप की। हमने कहा कि स्टैक ज्यादा स्पेस लेता है तो वो इंडेक्स 0 से शुरू करके चाहे 99 तक चला जाए, अगर हीप ज्यादा स्पेस लेते हैं बेशक 99 से चलती हुई 0 तक आ जाए, सारी स्पेस हीप ले जाए। और अगर दोनों ले रहे हैं तो उसे दोनों चलते जाएंगे, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और जहां पे बीच में टच कर जाएंगे वहां पे प्रोग्राम की स्पेस खत्म, वहां पे आपका प्रोग्राम में भी टर्मिनेट हो जाए या एरर देना शुरू कर दे या ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए कोई और पेजिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करे और आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए आपके प्रोग्राम के लिए। लेकिन इन एनी केस एरे को यूज करने के लिए मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मतलब ये एग्जांपल वो थी जो मैंने सेक्शन बी के साथ डिस्कस की थी, आपके साथ सिर्फ रिवाइज की है, ठीक है। आप इसको जाके बहुत डिटेल में अगर डिस्कस देखना चाहें तो वो आप सेक्शन बी की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स में भी, तो वो बहुत डिटेल में उनके साथ डिस्कस किया। इनफैक्ट वो क्वेश्चंस मैं उनसे कर रहा था और आंसर्स वो दे रहे थे। आपके साथ मैंने सिर्फ आपको कन्वे कर दी कि क्या डिस्कशन हुई थी। अब मैं आपके साथ भी यही जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता हूँ कि एक एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल अब आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और आप लोग मुझे आंसर्स करेंगे कि हम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि सबकी एक नॉलेज डेवलप हो जाए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ना जाए, हम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ही की बात करें कि हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिकली मैं वर्ड यूज करूंगा स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो डिवीजन है वो ऐसे है कि वी हैव अ स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, वी हैव अ स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस, एंड वी हैव अ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, वो जो डबल ई वालों के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर अब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास बीएस एंड एमएस के प्रोग्राम्स हैं, तो हम अभी सिर्फ फोकस करते हैं बीएस के ऊपर। अच्छा, बीएस के प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। दानियाल, आई कैन सी यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरह से लेटे हुए या बैठे हुए हैं? आई गेस लेटे हुए हैं ना। अगर आप अपना कैमरा ऑफ कर दें, सिर्फ माइक, बल्कि माइक भी ऑफ रखें। दानियाल अहमद बिन, कैन यू हियर मी? आप अपना, आई एम नॉट श्योर कि ये इमेज है या आप वाकई सो रहे हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं? अच्छा, मैं